السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 26۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں نے سپہ سالار سے وعدہ کیا کہ میں شہزادی کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کروں گا۔ سپہ سالار نے کہا کہ مسلمانوں کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ شہزادی شگفتہ کو کسی غیر مسلم نے اغوا کیا ہے، اور اغوا کرنے والا ایک آدمی نہیں۔ میں خود بھی ان نقوش پر غور کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہندوؤں کو اپنے بتوں کو پامال کیے جانے اور مندروں کے اجاڑ دینے کا شدید صدمہ ہے۔ اگرچہ بظاہر انہوں نے غزنوی لشکر کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں، اور وہ انتقام کی آگ میں جل بھن رہے تھے۔ چنانچہ میں نے غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک بلند مرتبہ شہزادی کا اغوا کوئی عام ہندو نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے کسی بااثر شخصیت کا ہاتھ ہے، اور ہندو میں اس وقت سوائے گوالیار کے راجہ ارجن کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ راجہ اطاعت قبول کرنے کے بعد اپنے محلات میں ایک طرح سے نظر بند تھا، اور وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اگر شہزادی کو اس نے اغوا کرایا ہے تو وہ اسے اپنے محل میں چھپا کر رکھتا۔ شاہی محلات کے چپے چپے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ قرین کیا صحیح بات تھی کہ شہزادی شگفتہ کو یا تو گوالیار کے قریب کسی خفیہ جگہ پر چھپا دیا گیا ہے، یا اسے قتل کر دیا گیا ہے اور اسے شہر سے باہر کسی دوسری جگہ بھجوا دیا گیا ہے۔ ایک بات ثابت ہوتی تھی کہ اس منصوبے میں اگر راجہ ارجن شریک تھا تو اسے کچھ ہندو مذہبی لوگوں یعنی پجاریوں وغیرہ کی بھی حمایت حاصل تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے شہر اور شہر کے باہر کے مندروں کا دورہ کیا جائے۔ ایک مسلمان یا سلطان محمود کی حکومت کے امیر کی حیثیت سے مجھے اس دورے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک روز ابرو کا صفایا کیا، ماتھے پر تلک لگایا، ہاتھ میں کرمنڈل پکڑا اور ایک رشی منی جوگی کا روپ دھار کر شہر کے مندروں کی طرف چل پڑا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہی ہے کہ آتون اور تاریخ کے غیر فانی مسافر ہونے کے ناطے مجھ پر دنیا کی ہر قدیم زبان کے مطالب واضح ہو گئے تھے، اور تاریخ کی کسی بھی دور کی کوئی ایسی زبان نہیں تھی جو میں بول اور سمجھ نہ سکتا تھا۔ اس اعتبار سے میں اس وقت کے ہندوؤں کی مقدس ترین زبان سنسکرت کا بھی ماہر تھا، اور اپنشتوں کے اشلوک مجھے زبانی یاد تھے۔ اس لیے میں نے ایک ہندو رشی کا بھیس بدلا تھا۔ میں جس مندر میں گیا وہاں کے پجاری نے میرا خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ میرے ویدوں کے علم اور اپنشتوں کے اشلوکوں کو بہت متاثر ہوا۔ مندر ویران ہو چکے تھے، بت پاش پاش ہو چکے تھے، پجاری آزردہ دل تھے۔ میں نے ان کے سامنے مسلمانوں کی مخالفت کی اور سلطانی فوج سے انتقام لینے کا عزم کا اظہار کیا۔ یہ بھی کہا کہ کسی ہمارے ہندو بھائی نے شہزادی شگفتہ کو اغوا کر کے ہمارے جذبہ انتقام کو کسی حد تک ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ پجاری مجھ کو شہزادی شگفتہ کے بارے میں کچھ بتائے، مگر میں نے دیکھا کہ شہر کے مندروں میں رہنے والے پجاری شہزادی شگفتہ کے اغوا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ میں نے باتوں میں ایک پجاری سے کہا کہ میں دیوتاؤں کے حکم پر اس مقدس مندروں کی شہر کی یاترا کو آیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ کیا شہر کے باہر بھی کوئی ایسا مندر موجود ہے جو میرے علم میں نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ شہر سے دور جنگل میں سرخ چٹانوں کے پہلو میں مینا دیوی کا ایک مندر ہے، جہاں کبھی کبھی راجہ گوالیار مہاراج ارجن پوجا پاٹ کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، مجھے اطلاع کی ضرورت تھی۔ میں اس وقت مینا دیوی کے مندر کی طرف چل پڑا۔ یہ مندر جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں گوالیار کے گھنے جنگل میں واقع تھا۔ میں نے مندر کو تلاش کر لیا۔ میں ایک عالم پنڈت یعنی رشی کے بھیس میں تھا۔ میں نے مندر کے دروازے پر پہنچتے ہی بلند آواز میں بھگوت گیتا کے اشلوک پڑھنے شروع کر دیے۔ خالص سنسکرت میں اشلوک پڑھنے جانے کی آواز سن کر بوڑھا پجاری مندر سے نکل آیا، اور اس نے اپنے سامنے ایک سرموڈا رشی دیکھا جس کے ہاتھ میں کرمنڈل اور دوسرے ہاتھ میں ترشول پکڑا تھا، تو وہ ہاتھ باندھ کر میرے آگے جھک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے آشیرواد دی اور کہا، دیوتا شنکر نے مجھے اجڑے مندروں کی یاترا کو بھیجا ہے، نراش نہ ہو۔ دیوتا اپنی اپنی مورتیاں لے کر سارے مندروں میں واپس آ رہے ہیں۔ بوڑھا پجاری بہت خوش ہوا۔ اسے کبھی شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں سلطان محمود کے دربار کے ایک مسلمان امیر ہوں۔ جس زبانی سے میں سنسکرت کے شلوک پڑھ رہا تھا، اتنی زبانی سے اس زمانے کے ہندو پجاری اور پروہت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بولا، مہاراج مندر میں پدھاریے۔ وہ مجھے مندر میں لے گیا۔ اس نے میرے آگے بکری کا دودھ اور جنگل سے توڑے گئے پھل لا کر رکھے۔ میں نے فوراً اپنی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا، اور باتوں میں شہزادی شگفتہ کے اغوا کے موضوع پر آگے اسے کہا، اے پجاری، دیوتا شنکر مسلمان شہزادی کے اغوا پر بہت خوش ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر مجھے اس آدمی کو مبارکباد دینے کی تاکید کی ہے جس نے مسلمان شہزادی کو اغوا کیا اور دیوتاؤں کو آکاش میں خوش کیا۔ یہ سن کر پجاری خوشی سے پھول گیا۔ دیوتا شنکر کی آشیرواد اور مبارکباد کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا دیوتا شنکر واقعی مجھ پر خوش ہیں؟ میں کچھ چونک سا پڑا۔ میں نے پجاری کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا تم ہی وہ دیوتاؤں کے پیارے منش ہو جس نے ہندو مذہب کی لاج رکھ لی ہے اور آکاش پر دیوتا شنکر کو خوش کیا ہے؟ بوڑھے پجاری نے کہا، ہاں مہاراج، میں نے ہی مسلمان قلعے دار کی بیٹی شگفتہ کو اغوا کروایا ہے۔
میری منزل اور میرے گوہر مراد کو جانے والا دروازہ میرے سامنے کھل گیا تھا۔ اب میرے لیے یہ معلوم کرنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا کہ شہزادی شگفتہ اغوا کیے جانے کے بعد کہاں ہے۔ پجاری نے ساری بات بیان کرتے بتایا کہ اس وقت گنگو اور اس کے 4 سپاہی شہزادی شگفتہ کو لے کر سومناتھ کے بڑے مندر کے پنڈت کی طرف چلے جا رہے ہوں گے۔ وہاں مسلمان شہزادی کی بڑے پجاری سے شادی کی جائے گی اور جب وہ امید سے ہوگی تو اسے دیوتا سومناتھ کے استھان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تاکہ دیوتا سومناتھ کا مندر پھر سے آباد اور فضا دیوی دیوتاؤں کے بھجنوں اور سنگ و ناکوس کے آوازوں سے گونج اٹھے۔ میرے پاؤں تلے سے ایک بات تو زمین کھسک گئی۔ ان بدبختوں نے کس قدر بھیانک اور ذلت آمیز منصوبہ بنایا تھا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ میں ایک پل کی بھی تاخیر نہ کروں، کیونکہ گوالیار سے احمد آباد کے مندر سومناتھ کا فاصلہ 4 دنوں میں طے ہو جاتا تھا اور اس وقت پجاری کے آدمیوں کو شہزادی شگفتہ کو اپنے آدمیوں کے ساتھ روانہ کیے 1 روز گزر چکا تھا۔ میں نے پجاری سے اجازت لی اور پھر آنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے نکل کر شہر میں آ گیا۔ اس وقت دن ڈھل رہا تھا اور اسلامی لشکر کے خیموں کے باہر آگ کے علاوہ روشن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میرا غلام میری اس پراسرار مہم سے واقف تھا۔ میں نے اس کو شاہی استقبل میں بھیج کر ایک برق رفتار عربی گھوڑا منگوایا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں نے مینا دیوی کے مندر سے پجاری سے جنگل سے گزرنے والا وہ راستہ معلوم کر لیا تھا جو وہاں سے 4 دنوں کی مسافت پر سومناتھ کے مندر کو جاتا تھا۔ میں گھوڑے کو شہر میں سر پر دوڑاتا نکل گیا اور جب شام کے اندھیرے چاروں طرف اتر آئے تو میں گھنے جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ میں اندھیری رات میں جنگل کے جس راستے پر گھوڑا دوڑائے چلا جا رہا تھا وہ اگرچہ اتنا کشادہ نہیں تھا مگر درختوں اور جھاڑیوں سے صاف تھا۔ مجھے بھوک پیاس اور تھکاوٹ کی کوئی فکر نہیں تھی، چنانچہ میں جنگل میں گھوڑا دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ شہزادی شگفتہ کو ایک اونٹ پر لاد کر لے جایا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی اور میں انہیں سومناتھ پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی پکڑ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے ایک مسلمان لڑکی کی عزت بچائی جائے۔ ساری رات میں جنگل میں سفر کرتا رہا۔ وہ پھٹی تو میں گھوڑے سے اتر پڑا، گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر چرنے اور تالاب پر پانی وغیرہ پینے کے بعد عربی گھوڑا پھر سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اس پر بیٹھا اور اسے ایڑ لگا دی۔ اس طرح 2 دن کے سفر کے بعد مجھے ایک جگہ اونٹ اور گھوڑے کے سم دکھائی دیے۔ میں شروع سے سفر سے پریشان تھا۔ اگر وہ شہزادی کو اغوا کر کے اسی راستے سے گئے ہیں اور کچے راستے پر گھوڑوں کے سموں اور اونٹ کے پاؤں کے نشانات کیوں نہیں ہیں؟ اب یہ بید کھلا کہ وہ لوگ سیدھا راستہ چھوڑ کر جنگل کے بائیں جانے والے پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے اب جنگل کے کچے راستے پر نکل آئے تھے۔ میں نے گھوڑے سے اتر کر نشانوں کا جائزہ لیا۔ ان نشانوں میں 1 اونٹ کے نشان تھے اور باقی 5 گھوڑوں کے سموں کے نشانات تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ 6 آدمی شہزادی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر ایڑ لگائی اور آگے کو چل پڑا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ جب تیسرا دن طلوع ہوا تو مجھے ان لوگوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا تو میں کچھ پریشان ہوا، کیونکہ سفر میں مجھے اگر 3 دن گزر گئے تھے تو ان لوگوں کے 4 دنوں کی مسافت پوری ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ سومناتھ کے مندر میں شہزادی کو لے کر پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے جب میں جنگل سے باہر نکلا تو دیکھا کہ دور سومناتھ کا مندر ہے، جس کی اونچی دیوار پر ایک مشعل روشن تھی۔ میں فکر مند ہوا کہ وہ لوگ سومناتھ کے مندر میں پہنچ گئے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادی شگفتہ کی شادی کر دی گئی ہو۔ سومناتھ مندر میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی میں سلطان محمود کے ساتھ اس مندر میں آ چکا تھا جب اس نے اپنے گرز کی ایک ہی ضرب سے مندر کے سب سے بڑے بت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ مندر کی دیوار کے پاس پہنچ کر میں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں چونکہ ایک رشی منی کے بھیس میں تھا اس لیے بلا جھجک مندر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ مندر کا دروازہ بند تھا، یہ ڈوڑی کا دروازہ تھا۔ یہاں دروازے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹک رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی گھنٹے کو بجانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے مندر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک موٹی توند اور چھوٹی چھوٹی مکار آنکھوں والے پنڈت نے ترش لہجے میں کہا، کون ہو تم گستاخ جو اتنی زور سے اپنے سامنے؟ ایک رشی منی کو دیکھ کر فکرہ اس کے منہ میں ادھورا رہ گیا۔ میں نے کرمنڈل والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، دیوتا شنکر کی آشیرواد تمہارے لیے ہے۔ میں کیلاش پربت کا رشی ہوں۔ سومناتھ یاترا کو مجھے دیوتا شنکر نے بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بڑی روانی اور خالص رشی منوں کے انداز میں بھگوت گیتا کے 3 شلوک پڑھ دیے۔ پنڈت بہت متاثر ہوا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے میرے آگے سر جھکایا اور دروازے سے الگ ہٹ کر ڈیوڑی میں کھڑا ہو کر بولا، مہاراج پدھاریے، ہمارے دھن باغ کے آپ دیوتا شنکر کے آشیرواد لے کر سومناتھ آ گئے ہیں۔ میں دروازے میں سے گزر کر ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ میں نے ڈیوڑی میں ایک جانب 1 اونٹ 5 گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ اس جگہ کو ایک بڑا ٹکڑا بھی پڑا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شہزادی شگفتہ سومناتھ کے مندر میں پہنچ چکی ہے اور اسی پنڈت کی تحویل میں ہے اور چاروں محافظ ہندو سپاہی بھی وہیں موجود ہیں۔ میں اس شلوک کا ورد کرتا ہوا مندر کے بڑے استھان کی طرف بڑھا۔ میں اس مندر کے سارے حدود اربے سے واقف تھا۔ پنڈت ہاتھ باندھے میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شکل ہی سے بڑا مکار اور کایا پنڈت لگ رہا تھا، مگر اس پر میرے ایک عظیم رشی ہونے کا اثر بیٹھ چکا تھا۔ سومناتھ کا استھان خالی اور ویران پڑا تھا۔
कभी यहाँ देवता सोमनाथ का बहुत बड़ा बुत हुआ करता था, जिसे मेरे सामने सुल्तान महमूद ने अपने गुर्ज के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मैंने खाली स्थान की तो हाथ उठाकर कहा, देवता अपने स्थान पर फिर विराजमान होगा। देवता शंकर ने मुझे मंदिर के फिर से आबाद होने की खुशखबरी देकर यहाँ भेजा है। मैंने स्थान के गिर्द मुकद्दस श्लोक पढ़ते हुए 4 चक्कर लगाए और पंडित से कहा, हमें भूख लगी है, क्या हमारे भोजन नहीं खिलाओगे? मुझे भूख वगैरह कुछ नहीं लगी थी। मैं चाहता था कि किसी जगह आराम से बैठकर पंडित के दिल को टटोलूं और इससे ये राज मालूम करूं कि शहजादी को इसने कहाँ छुपा रखा है। पंडित ने झुककर कहा, मेरी कोठरी में पिदारी है महाराज, भोजन पानी से आपकी सेवा करूंगा। वो मुझे अपनी कोठरी में ले आया जहाँ एक चिराग जल रहा था। इसने मुझे बिस्तर पर बिठाया और खुद एक चौकी पर बैठ गया। इतने में इसका साथी गंगू मुखबर भी वहाँ आ गया। इसने भी एक ऋषि मुनि को देखकर बड़े अदब से हाथ बांधकर प्रणाम किया और अदब से कोने में खड़ा हो गया। लेकिन मैं देख रहा था कोई टेढ़ी आंखों से मेरा जायजा भी ले रहा था। इस वक्त मेरे आगे केले के चौड़े पत्ते भी जाकर भोजन लगा दिया गया था, वही चावल और केले और पानी की कटोरी। मैं भोजन करने लगा, साथ ही पंडित से बातें भी करता जा रहा था। मैं हर फिक्रे के बाद अपना असर डालने के लिए वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में से एक आध संस्कृत का श्लोक भी पढ़ देता था, जिसका खातिर खा असर हो रहा था। इसके बावजूद मक्कार पंडित अपने दिल का राज नहीं दे रहा था। इसने अभी तक मुझे इस राज से आगाह नहीं किया था कि इसी ने एक अमीरजादी को अगवा करवाया है और सोमनाथ के खाली स्थान के आगे इसको ज़िबा करने वाला है। मैं जल्दी से जल्दी इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने भोजन खाने के बाद पंडित को झुककर देखा और कहा, देवता शंकर तुमसे बहुत खुश है। इन्हें मालूम है कि तुम देवता सोमनाथ की खोई हुई इज्जत बहाल करने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी पेश करने वाले हो। पंडित कुछ चौंका। इसने अपनी छोटी छोटी आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और बोला, महाराज देवता शंकर सब कुछ जानते हैं, मैं इनसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैंने कहा, तो मुझ पर फिर कुछ छुपा रहे हो? मैं भी देवता शंकर का बंधुर बनकर यहाँ स्थान के दर्शन करने आया हूँ। इसका जवाब पंडित ने कुछ न दिया। वो खामोशी रहा और एक निगाह अपने साथी गंगू पर डाली। वो भी अपनी जगह पर साकित खड़ा रहा। मैं सब कुछ जानता था। मैंने कहा, क्या तुम मुझ पर अपने दिल का राज नहीं खोलोगे? मैं ऋषि मुनि ही नहीं, आकाश का गंधर्व भी हूँ। अब पंडित ने जुबान खोलकर कहा, महाराज आप मुझसे ज्यादा को बात को जानते हैं। इस वक्त सोमनाथ का मंदिर हिंदुस्तान के हिंदुओं और आकाश पर रहने वाले देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है, जो उजड़ चुका है, जिसके सारे बुत पाश पाश हो चुके हैं। इसको देवताओं के बुतों से फिर से आबाद करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और ये बहुत बड़ी और बड़ी राजदाराना जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के साथ ही मुझ पर एक फर्ज भी लागू हो गया है कि मंदिर को दोबारा आबाद करने के मंसूबे को किसी बाहर के आदमी पर जाहिर न करूं। मैंने कहा, लेकिन मैं गंधीरू हूँ, आधा इंसान और आधा देवता, तो मुझ पर क्यों छुपाते हो? पंडित बोला, महाराज तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि सोमनाथ मंदिर के इस अजीम राज को किसी बाहर के आदमी पर जाहिर करने के लिए खा वो गंधीरू ही क्यों ना हो, एक शर्त का पूरा करना जरूरी है। मैंने पूछा, वो कौन सी शर्त है? पंडित बोला, आपको मुकद्दस नाग से अपने आप को डसवाना होगा, क्योंकि वेदों में लिखा है कि गंधीरों पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। अगर आप पर मुकद्दस नाग के जहर का असर न हुआ तो ये बात साबित हो जाएगी कि आप सच्चे गंधीरू हैं। फिर आपको वो सब कुछ बता दूंगा जो अभी तक आपसे धर्म के उसूलों की वजह से छुपा रहा हूँ। मैं दिल में मुस्कुरा दिया। अहमक आदमी ने एक ऐसी शर्त लगाई है जो मैं जितनी बार कहे पूरी करने को तैयार था। मैंने फौरन कहा, तुम मेरे गंधीरू होने पर शक करके पाप किया है, लेकिन मैं सोमनाथ और देवता शंकर के तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना मेरा ये त्रिशूल तुम्हें अभी आग जलाकर भस्म करके रख देता। लाओ मुकद्दस सांप को, मैं इसे डसवाने के लिए तैयार हूँ। पंडित खामोशी से मुझे तकता रहा। फिर इसने अपने गंगू मुखबर की तरफ देखा और इसे इशारा किया। वो फौरन कोठरी से निकल गया। अब मैंने पलंग पर यूं ही झूठ मूठ आसन जमा लिया और अथर्ववेद में से श्लोक पढ़ना शुरू कर दिए। 5 मिनट के बाद गंगू अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथों में एक छोटी सी गोल टोकरी थी। इसने टोकरी पंडित के सामने रख दी। मैंने कोई इस्तफसार न किया और बदस्तूर श्लोक गुनगुनाता रहा। पंडित ने टोकरी उठाई और इसे पलंग पर मेरा आगे रखते हुए कहा, महाराज इस टोकरी में मुकद्दस नाग बंद है, जिसके जहर में इतनी तासीर है कि अगर पत्थर पर दांत मारे तो इसे आग लग जाए। अगरचे मुझे आपके गंधीरू और मुकद्दस ऋषि होने का यकीन है, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, इस मुकद्दस रस्म का पूरा करना जरूरी है। मैंने श्लोक पढ़ने बंद कर दिए और टोकरी पर हाथ रखकर पंडित की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे भाई, मैंने तुम्हें क्षमा किया और मेरी प्रार्थना है कि आकाश के देवता भी तुम्हें माफ़ करें, क्योंकि तुमने एक गंधीरू की ताकत और शक्ति पर शक किया है। फिर भी चूंकि तुम एक मुकद्दस धर्म की शर्त पूरी कर रहे हो, इसलिए हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। मैंने टोकरी का ढकना उठाया। एक बार की मैं भी किसी हद तक दहशतज़दा सा होकर रह गया, क्योंकि इसके अंदर से एक काला सियाना फुंकार के ऊपर को उठा और अपना चौड़ा फन फैलाए मुझे सूख आंखों से देखते हुए झूमने लगा। पंडित और गंगू खौफ के मारे परे हट गए। सांप 3 फीट ऊंचा उठा हुआ था और बार बार अपनी सुर्ख 2 शाखा जुबान बाहर निकाल रहा था। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर इसे गर्दन से पकड़ना चाहा तो
اس نے बिजली ऐसी सूरत के साथ मेरी कलाई पर डस लिया। फिर भी मैंने इसे गर्दन से पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, ए पंडित, मुकद्दस नाक एक बार मुझे डस चुका है, लेकिन मैं ऐसे एक बार भी डसवाऊंगा ताकि तुम्हारे दिल में जरा सा भी शक बाकी न रहे। इस बार मैंने सांप को अपने नंगे बाजू पर डसवाया। सांप के दांत मेरे जिस्म में दाखिल हो ही नहीं सकते थे, इसका जहर अंदर कहाँ से जाता। इसके जहर के कतरे बाहर ही मेरे बाजू से लगे रह गए, जिनको मैंने पूछ डाला। पंडित और इसका साथी गंगू मेरी तरफ फटी फटी आंखों से तक रहे थे। इन्हें शायद यकीन था कि मैं सांप के डसने से फौरन जलकर राख हो जाऊंगा। जब ऐसा न हुआ तो मैंने मुकद्दस सांप को अपनी गर्दन में लपेट लिया और वो मेरे आगे सजदे में गिर पड़े। मैं भी यही चाहता था। मैंने इन्हें उठने का हुक्म दिया और मुकद्दस सांप को गर्दन से निकालकर टोकरी में दोबारा बंद कर दिया और पंडित से कहा, अब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि मुकद्दस सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि मैं आकाश का मुकद्दस गंधीरू हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम जिस मुसलमान लड़की को देवता सोमनाथ के स्थान पर कुर्बान करने को लाए हो वो कहाँ है, क्योंकि देवता शंकर ने मुझे हुक्म दिया कि कुर्बानी से पहले मेरा इससे ब्याह होगा। पंडित ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, आप पर सारा भेद खुला है। आप जमीन के ऊपर और पताल के अंदर की चीज़ों से वाकिफ है। जैसी आपकी इच्छा वैसे ही होगा। सबसे पहले इस मुसलमान लड़की का ब्याह आपसे ही होगा। मेरी जान में जान आई, क्योंकि इस जुमले से जाहिर होता था कि अभी तक मुसलमान अमीरजादी शगुफ्ता महफूज थी और इसका किसी हिंदू से अभी तक ब्याह नहीं हुआ था। मैं मुस्कुरा दिया। फिर मैंने चारों श्लोक बुलंद आवाज में पढ़े और पंडित से कहा, हमें हमारी होने वाली स्त्री के दर्शन कराए जाएं। पंडित एकदम चौकी पर से उठा, खड़ा हुआ और हाथ बांधकर बोला, महाराज, मेरे साथ तशरीफ लाए। मक्कार पंडित और गंगू मुझे अपने साथ देकर मंदिर के मुख्तलिफ तंगो तारीख सीने उतरते एक तय खाने में ले गए, जहाँ मैंने पहली बार मुसलमान अमीरजादी शगुफ्ता को देखा। इसके बाल बिखरे हुए थे, चिराग की रोशनी में इसका चेहरा उतरा हुआ था और रंग जर्द पड़ गया था। इसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। इसने चेहरा उठाकर एक हकारत भरी नजर हम पर डाली और फारसी जुबान में बुरा भला कहा। मैंने हाथ उठाकर कहा, लड़की खबरदार, हम तुम्हारी जुबान भी जानते हैं। हम गंधीरू हैं। अगर दोबारा जुबान खोली तो तुम्हें इस जग जलाकर भस्म कर देंगे। मगर वो भी गैर मुसलमान की बेटी थी। इसे हिंदी देवताओं की धज्जियां बिखेरनी शुरू कर दी और कहा कि हिंदुस्तान में बहुत जल्द इस्लाम का परचम लहराएगा। दिल में मैं बड़ा खुश हुआ, मगर ऊपर से डांटा और गजबनाक को हुक्म दिया कि इस लड़की का मुंह बंद किया जाए। फौरन पंडित और गंगू ने शहजादी शगुफ्ता के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। इसके बाद इन दोनों को हुक्म दिया कि वो कोठी से चले जाए और मंदिर के स्थान के पास बैठकर गीता का पाठ करें, क्योंकि मैं देवता सोमनाथ की जमानत के सामने कुर्बानी से पहले मुकद्दस श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। मैं इस वक्त मुसलमान अमीरजादी के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने नींबाज आंखों से देखा कि पंडित और इसका साथी गंगू खामोशी से मेरे आगे बारी बारी सर झुकाकर कोठी से बाहर निकल गए। मुझे इनकी खड़ाओं की आवाज़ें कुछ लम्हों तक सुनाई देती रहीं। जब मुझे यकीन हो गया कि वो तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा चुके हैं तो मैंने जल्दी से उठकर शहजादी शगुफ्ता के मुंह से कपड़ा हटा दिया और कहा, बेटी घबराओ नहीं, मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ और सुल्तान महमूद के दरबार से तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनते ही शहजादी शगुफ्ता के जर चेहरे पर मुसरत की एक बेपाया लहर दौड़ गई। इसके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर हो रहा था कि इसे मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। मैंने निगाह उठाकर कोठी के बाहर डाली, फिर इसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं सुल्तान महमूद का मोतबद खास हूँ और जोगी का भेस बदल कर तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। शहजादी शगुफ्ता बार बार अपने खुश होंठों पर जुबान फेर रही थी। कहने लगी, लेकिन आप तो संस्कृत की शुरू पढ़ रहे थे। मैं संस्कृत का आलम भी हूँ। अगर मुझे संस्कृत न आती होती तो यहाँ तक कभी ना पहुँच सकता। अब तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। शहजादी शगुफ्ता की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बाबा किस हाल में है, मेरी अम्मी को कितना दुख हुआ होगा। या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर देना, मेरे गुनाह माफ़ कर देना। मैंने शहजादी शगुफ्ता के सर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली दी और कहा, बेटी, आंसू मत बहाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, इसलिए तो इसने मुझे यहाँ भेजा है। वो आंसू पूछते हुए बोली, इस जहन्नुम से निकलना आसान काम नहीं। यहाँ 4 सिपाही भी हैं जिनके पास नेज़े, तीर, कमान और तलवारें भी हैं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे साथ आप भी जान से हाथ धो बैठें। मैंने मुस्कुराते इसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, हमारी जान और इज्जत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो हम दोनों को यहाँ से अपनी हिफाजत में निकालेगा। तुम खामोशी के साथ जिस तरह पहले बैठी थी इसी तरह बैठी रहो। कल रात में तुम्हारे पास आऊँगा, फिर हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल और चावल भिजवाऊंगा, इन्हें तुम सैर होकर खाना। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। मैं कोठरी से बाहर निकल कर आ गया। कोठरी को बाहर से बंद करके ताला लगा दिया, चाबी मुट्ठी में थामी और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंदिर के हॉल कमरे में आ गया। मैंने देखा कि पंडित उसका साथी देवता सोमनाथ के खाली स्थान के सामने बैठे श्लोक पढ़ने के बजाय आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। मुझे ख्याल गुजरा कि कहीं इन दोनों को मुझ पर शक तो नहीं पड़ गया, मगर अब मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे अपनी तरफ आता देखकर एकदम उठे, खड़े हुए और हाथ बांधकर सर झुका दिए। मैंने ताकमाना अंदाज में कहा, अब वो मेरी स्त्री बनने वाली है। इसको उम्दा मीठे फल और भोजन खिलाओ।
जो हुक्म महाराज। ये कहकर पंडित ने अपने साथी गंगू को इशारा किया। वो सर झुकाकर चला गया। अब मैंने पंडित से कहा कि मैं कल रात इस मुसलमान लड़की के आगे मुकद्दस गीता का पाठ करूंगा, फिर कहीं जाकर वो इस लायक होगी कि मेरी स्त्री बन सके। पंडित ने कहा, महाराज कहीं इसकी कुर्बानी में देर ना हो जाए। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, देवता शंकर की इच्छा को हम तुमसे बेहतर समझते हैं। कुर्बानी आज से ठीक 15 रोज बाद पूर्णमासी की रात को होगी। जो हुक्म महाराज। पंडित ने सर झुकाते हुए कहा। इस वक्त रात का तीसरा पहर गुजर रहा था। मुझे पंडित जी ने बसराम के लिए कोठरी में पहुंचाकर वहां चिराग जला दिया और डंडोत बजाकर चला गया। मैंने अभी तक 2-4 हिंदू सिपाही नहीं देखे थे जो शहजादी शिगुफ्ता को ग्वालियर से अगवा करके यहाँ लाए थे। उनकी तरफ से मुझे इस बात का खतरा था कि जब मैं शहजादी शिगुफ्ता को वहां से लेकर फरार होऊंगा तो ये सिपाही रात खुल जाने पर तीर चलाकर शहजादी को हलाक कर सकते हैं। इसलिए इनके हथियारों पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी था, मगर अभी तक उनमें से इनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं हिरन की खाल के बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि कल रात मुझे शहजादी शिगुफ्ता को किस तरह से निकाल कर फरार होना होगा। गंगू हाथ में दूध का प्याला लिए दाखिल हुआ। महाराज, ये आपके लिए है। 10 बकरियों का दूध धोकर एक बकरी को पिलाया गया और फिर इस बकरी का दूध धोकर पहला प्याला आपको पेश किया जा रहा है। मैंने शुक्रिया के साथ दूध का प्याला ले लिया और जब गंगू जाने लगा तो इससे इन 4 सिपाहियों के बारे में पूछा जो शहजादी को हिफाजत में ग्वालियर के जंगल से यहाँ लाए थे। गंगू ने गहरी मुश्किल से निगाह मुझ पर डाली और हाथ बांधकर कहा, महाराज, बड़े पंडित जी जानते हैं कि इन सिपाहियों को कहाँ रखा गया है। ये कहकर गंगू चला गया। मैं सोच में पड़ गया कि इस मामूली पुरोहित ने मेरे सवाल पर इतनी गहरी निगाह क्यों डाली थी। नींद तो जाहिर है मुझे आनी नहीं थी और ना आती है। मैं बिस्तर पर लेटा जागता रहा। मैंने दिया गुल कर दिया था। कोठरी में अंधेरा था। बाईं तरफ एक रोशनदान था जिसमें सलाखें लगी हुई थी। इस रोशनदान से सितारों भरी रात की हल्की फिरोजी रोशनी अंदर आ रही थी। आधी रात के बाद मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई मेरी कोठरी के आगे से दबे पांव गुजर गया था। मैं हमतन गोश हो गया। इसके बाद कोई आवाज़ न आई। मैं सोचने लगा, आधी रात के बाद ये कौन इधर से गुजरा है। अपने शक को रफा करने के लिए बिस्तर से उठा और दबे पांव कोठरी से बाहर आ गया। हॉल कमरे में अंधेरा था। मंदिर के पंडित की कोठरी बिल्कुल सामने स्थान के अक़म में थी। इसके बंद दरवाजे की दहलीज में से चिराग की धुंधली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं बरामदे की दीवार से लगकर चलता हुआ पंडित की कोठरी के बंद दरवाजे के पास आकर रुक गया। अंदर से 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आवाज़ें पहचान ली। गंगू और पंडित आपस में बातें कर रहे थे। गंगू कह रहा था, महाराज, ये शख्स मुझे गंदीरों के रूप में कोई चालाक शोबदाबाज लगता है। मुझे शक है कि ये लड़की मुसलमान को उड़ा लेकर जाएगा। जब मैं दूध लेकर गया तो मुझे सिपाहियों के बारे में पूछ रहा था। पंडित की आवाज़ आई, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना भी इसे कत्ल करा दिया जाए। गंगू ने कहा, महाराज, इस पर मुकद्दस शाम के जहर का असर नहीं हुआ। ये तो कोई जादूगर है। हो सकता है सिपाहियों की तलवारें भी इस पर असर न करें और वो जादू के जोर से गायब हो जाए। फिर तुम मुझसे क्या मशवरा देते हो? पंडित ने पूछा। गंगू ने जवाब दिया, महाराज, मेरी राय है कि हमें मुसलमान लड़की को अभी इस वक्त यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुँचा देना चाहिए। सुबह हम मशहूर कर देंगे कि लड़की फरार हो गई है। तुम्हारी राय माकूल है, तुम ऐसा करोगे। अभी तहखाने में अपने साथ 2 सिपाही लेकर जाओ और लड़की को वहाँ से निकालकर मंदिर की छत वाले बुर्ज की अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। जो हुक्म महाराज। और सुनो, लड़की का मुंह जरूर कपड़े से बांध देना। मैंने सुना तो तेजी से वहां से हटाया और अपनी कोठरी में दरवाजे के पीछे लगकर तकने लगा। गंगू पंडित की कोठरी से निकलकर तेज कदमों से एक तरफ अंधेरे में गायब हो गया। मैं कुछ सोचकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। दिन चढ़ा तो पंडित भागा भागा मेरे पास आया और बनावटी परेशानी के आलम में बोला कि मुसलमान लड़की फरार हो गई है। गंगू भी इसके साथ था। दोनों मसनूई तौर पर घबराए हुए थे। मुझे तो मालूम ही था कि उन्होंने शहजादी को किस जगह छुपा दिया है। चुनांचे मैंने बड़े सुकून से आंखें बंद कर कहा, देवताओं को अगर यही मंजूर था तो हम कुछ नहीं कर सकते। पंडित बोला, महाराज, अब देवता सोमनाथ की कुर्बानी का क्या होगा? मैंने कहा, हमें एक और मुसलमान लड़की पकड़ लानी होगी। मगर क्या तुम्हारे सिपाही कोठी के बाहर पहरा नहीं दे रहे थे? पंडित ने कहा, सिपाही इस वक्त सो रहे थे कि लड़की रोशनदान तोड़कर बाहर निकल गई और सुरंग के रास्ते फरार हो गई। मैंने आंखें खोल दी और पंडित से कहा, मुझे आज सारा दिन मंदिर की छत पर दरिया की तरफ मुंह करके बैठकर तपस्या करनी होगी, फिर मैं तुम्हें बता सकूंगा कि लड़की मुसलमान फरार होकर कहाँ गई है। अब पंडित घबराया कहने लगा, महाराज, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं, हम कोई दूसरी मुसलमान लड़की पकड़ लाएंगे। मैंने कहा, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं रियाजत करने को तैयार हूँ। नहीं महाराज, आप तकलीफ ना उठाएं, हम बहुत जल्द ग्वालियर के किले से किसी दूसरी मुसलमान लड़की को अगवा करके ले आएंगे। हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मैं जानबूझकर खामोश हो गया। मैं सारा दिन मंदिर के बड़े कमरे में इस स्थान के पत्थर के आगे बैठा झूठ मूठ इबादत करता रहा। मैं रात की तारीकी छा जाने का इंतजार कर रहा था। मेरा मंसूबा इसी रात शहजादी शिगुफ्ता को वहां से निकाल कर ले जाने का था।
मैंने पंडित से बातों ही बातों में मालूम कर लिया था कि चारों सिपाही रात के वो मंदिर की डेड़ी में पहरा देते हैं जन के घोड़े बंधे हुए हैं। इसी दौरान में मुझे इस बात का भी शक पड़ गया था कि पंडित आज रात शहजादी शगुफ्ता को बुर्ज वाली कोठी से निकालकर अपनी कोठी में लाने का प्रोग्राम बना चुका है। इसलिए मैं अमदन इस स्थान की ऐसी जगह बैठा था जहाँ से मुझ पर ऊपर छत पर जाती सीढ़ियाँ साफ दिखाई दे रही थी। मुझे खूब मालूम था कि छत पर जाने का सिर्फ यही एक जीना है। शाम को मैंने अपनी रियाजत की सफ लपेट दी और दरिया का नज़ारा करने के बहाने ऊपर छत पर चला गया। सूरज दूर मगरबी पहाड़ियों के पीछे गायब हो रहा था और मंदिर के नीचे बहते हुए दरिया में इसकी सुर्ख किरणों ने आग सी लगा रखी थी। मेरी नज़रें दूर कोने वाले बुर्ज को देख रही थी जिसकी कोठी के बंद दरवाजे पर ताला पड़ा था। शहजादी शगुफ्ता इसी कोठी में कैद थी। मुझे ऊपर ज़्यादा देखकर गंगू भी ऊपर आ गया। वो मेरे पास हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, कभी इस छत पर पूजा के लिए आने वाली खूबसूरत हिंदू औरतों का झमघटा लगा रहता था जो दरिया के देवता के भजन गाया करती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, गंगू, वो वक्त फिर आ जाएगा, फिक्र मत करो, देवता शंकर हमारी मदद को खुद नीचे आ रहे हैं। फिर जब रात का अंधेरा बढ़ने लगा तो मैं छत से उतर आया। गंगू भी मेरे साथ ही नीचे आ गया। मैंने गंगू से कहा, पंडित से कहो कि 1 घंटे बाद हम भोजन इसी की कोठरी में करेंगे। जो हुक्म महाराज, ये कहकर गंगू पंडित की कोठी की तरफ चला गया। डेढ़ी में आकर मैंने देखा कि एक सिपाही चल फिरकर पहरा दे रहा था। बाकी तीनों सिपाही डेढ़ी की कोठरी के अंदर बैठे थे। चिराग जल रहा था। जो सिपाही पहरा दे रहा था, मैंने इसे एक तरफ बुलाकर कहा कि इसे पंडित जी महाराज ने बुलाया है। इसने नेज़ा भाई दीवार के साथ लगा दिया और खुद जीना चढ़कर ऊपर जाने लगा। मैंने पीछे इसकी गर्दन पर पूरी ताकत से एक हाथ मारा। इसकी गर्दन टूटकर लटक गई और वो जीने से लुढ़क गया। मैंने इसे घसीटकर दरवाजे के पीछे डाला और डेढ़ी में आकर इसके साथियों के पास कोठरी में गया। मैंने देख लिया था कि इनमें से किसी के पास हथियार नहीं। इनके तीर कमान, नेज़े और तलवारें कोने में पड़ी थी। वो हैरान होकर मुझे देखने लगे। एक ने पूछा, महाराज, आप कैसे आ गए? मैंने कहा, डेढ़ी में सांप निकल आया है, इसे हलाक करो ताकि मैं पूजा पाठ के लिए ऊपर जा सकूं। तीनों सिपाही बड़ी सादतमंदी से कोठी से बाहर निकलकर डेढ़ी में मशाल जलाकर सांप को ढूंढने लगे। उन्होंने तलवारें पकड़ रखी थी। इस दौरान मैंने कोने में रखी चारों कमानों की रस्सियां काट दी। मुझे इनकी कमानों से ही खतरा था। इन कमानों से निकला हुआ तीर शहजादी शगुफ्ता को दूर से हलाक कर सकता था। जब इन्हें कहीं सांप न मिला तो मैंने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सांप बाहर भाग गया होगा, मैं जाता हूँ। एक ने पूछा, हमारा साथी जो यहाँ पहरा दे रहा था वो कहाँ चला गया? मैंने जल्दी से जवाब दिया कि इसे पंडित जी ने बुलाया था, वो अभी अभी ऊपर गया है। तीनों कोठी में चले गए। मेरे लिए मैदान साफ था। मुझे सिपाहियों के तीरों का जो खतरा था, अब वो खतरा दूर हो चुका था। एक बात की नाकामी जरूर हुई थी कि मैं घोड़े हासिल करने और उन्हें डेढ़ी से निकालकर किसी महफूज जगह पर छुपा देने में कामयाब न हो सका था। लेकिन अब मैं इन कामों में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि वक्त गुजरता चला जा रहा था और ऐन मुमकिन था कि बदखसल पंडित बुर्ज वाली कोठी पर हमला करने ही वाला हो। चलते मैं वहां से सीधा मंदिर की छत पर आ गया। अभी रात का पहला पहर था और पंडित शायद मेरे साथ खाना खाने और मुझे कोठी में सुलाने के लिए बुर्ज वाली कोठी पर हमलावर होना चाहता था। मैंने एक मजबूत रस्सी अपने साथ रख ली थी। ये रस्सी मेरी कमर के साथ बंधी हुई थी। छत पर आते ही मैं सीधा बुर्ज की तरफ गया और इसके दरवाजे पर लगा हुआ ताला हाथ की मामूली से ज़रब से तोड़ दिया। मैंने देखा कि शहजादी शगुफ्ता के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और वो रस्सी में जकड़ी फर्श पर पड़ी है। मैंने जाते ही इसे आज़ाद किया। खौफ के मारे इसके मुंह से चीखने के लिए लगी थी कि मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बेटी, मैं हूँ अब्दुल्ला, चलो मेरे साथ यहाँ से निकल चलो, फरार होने का वक्त आ गया है। मैं इसे कोठी से निकालकर छत की मगरबी जानिब आ गया। यह दीवार की ऊंचाई 3 मंजिलों से ज्यादा नहीं थी और नीचे नुकीली चट्टानों के बजाय जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। मैंने छत के कंकरे के साथ रस्सी बांध के नीचे लटका दी और शगुफ्ता से कहा कि वो रस्सी की मदद से नीचे उतर जाए। अंधेरे में वो नीचे उतरते हुए पहले तो डरी मगर फिर हौसला करके रस्सी को थामकर मजबूती से दीवार के साथ पांव टिकाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। जब इसके पांव जमीन के साथ जा लगे तो इसने रस्सी को जोर से हिलाया। इसके बाद मैं रस्सी के जरिए नीचे उतर गया। मुझे नीचे आते हुए मुश्किल 10 सेकंड लगे होंगे। मैंने शगुफ्ता को साथ लिया और दरिया की तरफ चल पड़ा। रातों रात दरिया पार करके मैं अहमद नगर के दखन की तरफ निकल जाना चाहता था। इस तरफ हिंदुओं का एक गांव था। चूंकि मैं एक जोगी या ऋषि के भेष में था, इसलिए मुझे यकीन था कि वहां से 2 घोड़े हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। हिंदुओं के गांव पहुंचते पहुंचते में सुबह हो गई। मैंने शगुफ्ता को एक जगह खेतों में छुप जाने को कहा और खुद गाँव में दाखिल हो गया। यह एक जिम्मेदार से अपनी अकीदत का फायदा उठाते हुए 2 घोड़े हासिल किए और शगुफ्ता को लेकर ग्वालियर की तरफ रवाना हो गया। मैंने जंगल के मशरकी किनारे का रास्ता इख्तियार किया जो अगरचे तवील था मगर बहुत महफूज था। हमें ग्वालियर पहुंचते पहुंचते 5 दिन लग गए। सुल्तान महमूद गजनी से वापस आ चुका था। शहजादी शगुफ्ता को किलेदार के हवाले कर दिया गया। मैंने सारी रुदात सुल्तान महमूद को सुना दी। महाराजा ग्वालियर अर्जुन को बूढ़े पुजारी और इसके दरबारियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान महमूद मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश हुआ। वो मुझे अपना नायब वज़ीर मुकर्रर करना चाहता था, लेकिन मैंने बड़े अदब से मुआवज़त चाहिए और कहा कि मैं मुल्क हिंदुस्तान के मशरिक में सियाहत के लिए जाना चाहता हूँ। सुल्तान महमूद ने मुझसे वादा किया कि वापसी पर मैं गजनी ज़रूर आऊँगा।
मैंने सुल्तान से इजाज़त ली और घोड़े पर सवार होकर ग्वालियर से शुमाल मशरिक की तरफ चल पड़ा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तारीख़ के मुसाफिर की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।